नमस्ते। आज हम यूनिट 9 द ग्रेट स्टोन फिश पार्ट 1 की रीडिंग करेंगे। बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? दूर से देखने पर पहाड़ियों की चोटियाँ और बड़ी चट्टानें अलग अलग आकार लेती हुई लगती हैं। वे किसी जानवर या इंसान की आकृति जैसी लग सकती हैं। लोग इन आकृतियों को कहानियाँ बताते हैं। कुछ कहानियाँ सच होती हैं, कुछ नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस एक ऐसी ही आकृति है जो घाटी में रहने वालों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाती है। वह क्या थी? क्या वह सच हुई? One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. एक दोपहर जब सूरज ढल रहा था, एक माँ और उसका छोटा बेटा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे। द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें बस अपनी आँखें उठानी थी और वह वहाँ था, साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि मीलों दूर धूप उसके सभी हिस्सों को रोशन कर रही थी। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? और ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that, when viewed at the proper distance, they resembled the features of a human face. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beaming face that was continually beaming over it. यानी ग्रेट स्टोन फेस कुदरत का बनाया हुआ एक नमूना था जो पहाड़ के सीधे किनारे पर कुछ बड़े बड़े पत्थरों से बना था। इन पत्थरों को इस तरह एक साथ रखा गया था कि सही दूरी से देखने पर वे इंसान के चेहरे जैसे दिखते थे। अगर वे देखने वाला बहुत पास जाता तो उसे उस बड़े चेहरे की आउटलाइन समझ नहीं आती और उसे सिर्फ एक के ऊपर एक रखे हुए बड़े बड़े पत्थर ही दिखते। लेकिन दूर से उसके चारों ओर बादलों के जमावड़े को देखकर ग्रेट स्टोन फेस बिल्कुल जिंदा लगता था। बहुत से लोगों का मानना था कि घाटी की उपजाऊपन का ज़्यादातर क्रेडिट उस अच्छे चेहरे को जाता है जो उस पर लगातार चमकता रहता था। A mother and little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. एक माँ और उसका छोटा बेटा, जैसा कि हमने पहले कहा, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। मदर सेड ही, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. माँ, उसने कहा, जबकि ग्रेट फेस उस पर मुस्कुरा रहा था।
काश यह बोल पाता, क्योंकि यह इतना अच्छा दिखता है कि इसकी आवाज़ ज़रूर अच्छी होगी। अगर मुझे कभी ऐसे चेहरे वाला कोई आदमी दिखे तो मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. अगर कोई पुरानी भविष्यवाणी सच हो जाए, उसकी माँ ने जवाब दिया, तो हम कभी ऐसे ही चेहरे वाले आदमी को देख सकते हैं। What a prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. आप किस भविष्यवाणी का मतलब निकाल रही हैं, प्यारी माँ? अर्नेस्ट ने उत्सुकता से पूछा। प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. तो उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी अपनी माँ ने उसे सुनाई थी जब वह खुद छोटे अर्नेस्ट से छोटी थी, कि भविष्य में किसी दिन यहाँ के पास एक बच्चा पैदा होगा जो अपने समय का सबसे महान और नेक इंसान बनने वाला था, और जिसका चेहरा मर्द होने पर ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए था। कई लोगों को अब भी इस पुरानी भविष्यवाणी पर भरोसा था, लेकिन दूसरों ने इसे बेकार की बातें समझा। किसी भी हालत में भविष्यवाणी का महान आदमी अभी तक सामने नहीं आया था। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. Oh माँ, अर्नेस्ट ने अपने सिर के ऊपर हाथ ताली बजाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं उसे देखने के लिए जिंदा रहूँगा। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. उसकी माँ एक प्यार करने वाली और सोचने वाली औरत थी। उसने सोचा यह सही है कि वह अपने छोटे बेटे की उम्मीदों को निराश ना करे, इसलिए उसने उससे कहा, शायद तुम कर सको। And Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the long cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In his manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be mild and quite youth. और अर्नेस्ट अपनी माँ की सुनाई कहानी अभी कभी नहीं भूला। जब भी वह ग्रेट स्टोन फेस को देखता तो यह हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। उसने अपना बचपन उस लॉग कॉटेज में बिताया जहाँ वह पैदा हुआ था, अपनी माँ का बहुत फ़र्ज निभाता था और कई चीज़ों में उसकी मदद करता था। अपने छोटे हाथों से और उससे भी ज़्यादा अपने प्यार भरे दिल से उसकी बहुत मदद करता था। इस तरह एक खुशमिजाज लेकिन अक्सर सोचने वाले बच्चे से वह एक शांत नौजवान बन गया। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक टीचर बन गया था। जब दिन का काम खत्म हो जाता तो वह घंटों उसे देखता रहता, जब तक उसे यह ना लगने लगे कि यह उन विशाल चेहरों ने उसे पहचान लिया है और उसे दया और हिम्मत देने वाली मुस्कान दी है। About this time there was a rumor throughout the valley that the great man
who was to bear a resemblance to the great stone face, had appeared at last. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. लगभग इसी समय पूरी घाटी में यह अफवाह फैल गई कि वह महान आदमी जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता था आखिरकार प्रकट हो गया है। ऐसा लगता है कि कई साल पहले एक नौजवान घाटी छोड़कर दूर एक बंदरगाह पर बस गया था। गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought of his native valley and decided to go back there and एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बर्न। गैदर गोल्ड जो उसका नाम था ने एक दुकानदारी शुरू की थी और बिजनेस के मामलों में तेज होने के कारण वह इतना अमीर हो गया था कि उसे अपनी दौलत गिनने में ही 100 साल लग जाते। समय के साथ उसे अपनी जन्मभूमि घाटी की याद आई और उसने वहीं वापस जाने और वहीं अपने दिन खत्म करने का फैसला किया जहां वह पैदा हुआ था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." अर्नेस्ट इस बात से बहुत खुश हुआ कि इतने सालों बाद वह महान आदमी, वह नेक आदमी, भविष्यवाणी करने वाला आदमी आखिरकार अपनी घाटी में दिखाई देने वाला था। एक दिन जब लड़का घाटी की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसकी तरफ देख रहा है, तो पहियों की आवाज़ सुनाई दी और लोगों की भीड़ चिल्लाई, "महान मिस्टर गैदर गोल्ड आ रहे हैं।" A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. 4 घोड़ों से खींची जा रही एक गाड़ी सड़क के मोड़ पर तेजी से आई। उसमें खिड़की से थोड़ा बाहर निकला हुआ पीली स्किन वाले एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. ग्रेट स्टोन फेस की वही तस्वीर, लोग चिल्लाए। बिल्कुल पुरानी भविष्यवाणी सच है, आखिरकार वह महान आदमी हमारे सामने है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." और जिस बात ने अर्नेस्ट को बहुत हैरान किया वह यह थी कि उन्हें सच में यकीन हो गया था कि यह वही शक्ल है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। वह उदास होकर उस बुरे चेहरे की झुर्रियों वाली चालाकी से मुंह मोड़कर घाटी की तरफ देखने लगा, जहाँ पत्थर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, "वह आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वह आदमी आएगा।" ओके।